Around the world, indigenous people are resisting mainstream development models, which have devastated local biodiversity, threatened species with extinction, and changed the Earth's climate. Many communities are creating transformative alternatives to challenge such ideas of development. Kochi Taluka in Gadchiroli district of Maharashtra state in India is one such region, where the local villages are moving towards social, political, economic and ecological transformation and are redefining development and well-being. This video is an outcome of a collaborative study to document transformative processes that offer an alternative vision of well-being from the mainstream development model, in which destruction and heavy industry are key components. Mining leases have been granted in the district, bringing extra urgency to an ever-changing situation. Dr. Satish Gogolwar is the co-founder of Amhi Amcha Arogya Sati, a not-for-profit organization, and has been working in Kochi Taluka on issues of health, education and local livelihoods for over 3 decades. मैं खुद एक अच्छा जीवन जिसको हम वेलबींग कहते हैं वो कैसे देखता हूँ, तो मुझे बहुत बार आशा उसी समाज से जुड़ती है कि उस समुदाय का जो एक सामूहिक तौर पे आनंद लेने की बात हो, सामूहिकता से काम करने की बात हो, एक आपस का दुख बांटने की बात हो, तो इस तरह का ही समूह होना चाहिए कि जिसमें मानवीय मूल्य है, स्त्री पुरुष में कम से कम मतभेद हो या समानता हो स्त्री पुरुष में, और सामूहिक विकास में ये करे. Adivasis are the indigenous people of India, and although their societies are undergoing changes, their spiritual practices and social-cultural organization continues to revolve around nature, natural cycles and natural resources. In Kochi, forests are the central foundation of the Adivasi identity and way of life. कि हमारे जो ये जल जंगल जमीन, तो इससे तो हमारे कई साल पहले से हमारे संबंध जुड़ा हुआ है, हमारे परंपरा जुड़ा है, रीति रिवाज जुड़ा है, संस्कृति भी जुड़ा है, हमारे खाने का उपजीविका वहाँ से बहुत से जुड़े हैं कि हम जितना खेत से अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं उतना हम जंगल से 12 महीना हम खाने के लिए, वापरने के लिए, शादी बर ब्याह के लिए, देवता में फूल है, पाना है, जिस देवी देवता को जो चीज़ चाहता है वो हम फल फूल सभी चढ़ाते हैं, तो वो खूब यानी नज़दीक से रिश्ता जो है महिला और जंगल से जो संबंध जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी है. Kochi Taluka includes 133 villages or Gram Sabhas, village assemblies which are customarily divided into 3 traditional territorial units called ilakas. The most recent census data states that 73% of Kochi's population is made of Gond and Kanwa Adivasi communities. These Adivasi communities are heavily dependent on the forest for their income and survival. Bamboo, wild vegetables, medicinal plants, tendu leaves, and many more are gathered in the forest. These forest products make up a large part of the local economy. ते माका गडा मर्रामंता मराता माकिदम तोलावर हांतरोम आणि मागता तांतरोम अन कोक्सुना हांतरोम अनु हांतरोम अद मट्टाता पुरोइना नवे हांतर नतुर पोटाता लेंजो बरा अनसा माटी मनता हीर माटी फिर हीर माटी का तांतरोम उसने किंतरोम अंतिंतरोम कई मुह माटी मनता कई मुह माटी तांतरोम माको अनि तिंतरोम इंजोक साटी माक मट्टा है वो माक मट्टा साटी लारे मानतरोम इदिदे पावुसरो आयार पिरारो आयार तगड़ा मट्टा ता तुमरी हादार हरे का हादार इरु परार इरु पेहकांतरोम. Adivasi communities' close relationship to the forest extends to the animals that live in the forest too. For people living in Kochi Taluka, the biodiversity of their forest is a source of pride and a sign of the forest's good health. आमचा जंगल आहे, याच्यामध्ये आम्हाला गोन उपज वेगवेगळे प्राणी पाहायला मिळतात. याच्यामध्ये सांबार आहेत, हरिण आहेत, रानडुक्कर आहेत, जंगल कोंबडी आहे, मोर पण आहेत. बंदर है, भालू है, खरगोश है, मंजूर है,
और सांबर है, चित्तर है, चाटी है, एली मुंगी है, ये सब हमारे पक्षी है। ये हमारा टोटम है। इसलिए ये जंगल में वो हमारा है, वो किसी का नहीं। और जानवर के साथ हम रहते हैं और हमारे साथ जानवर रहता है, उसका यानी कि व्यवस्थापन करने वाले हम लोग हैं। वो सही हमारा देव है और इसी को मानते हैं, निसर्गा देव है। जहाँ हम लोग उसका पूजा पाठ करते हैं वही देव होता है। This intricate relationship with nature, based on mutual respect, interdependence and reciprocation, was not shared by the colonial British rulers who managed the forests of India in the 19th and into the 20th century. Their relationship with the forest was purely commercial and based on maximizing the extraction of resources. They considered tribal people's use of the forest to be damaging and created laws to obstruct their access and rights to the forest. ये द्वंद्व हमेशा चलता है कि जंगल मतलब किसका। तो ये द्वंद्व चल रहा है कि सबसे पहले यहाँ आया कौन। तो जब हम मूल निवासी या आदिवासी बोलते हैं तो यहाँ जो है सबसे पहले रहने वाले लोग, तो आदिवासी करके वही आते हैं। और उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बाद में आया, उनसे पहले तो हम यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब ये जंगल हमारा है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ लोग रहते थे, जिन जंगलों के साथ लोग रहते थे, वन विभाग आने के बाद और ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने अपना कानून बनाए और उसमें आदिवासी जो खुद मालक थे वो यहाँ पे इंक्रोचर्स बन गए। The exclusionary, centralized and extractive policies of the British colonialists were maintained by the independent Indian state and had a devastating impact on traditional ways of life. People's access and use of the forests was further restricted and the ecology of the forest degraded. Today in Gadchiroli district, large stretches of the forests are being earmarked for mining. Despite strong opposition from the local Gram Sabha or village assembly, up until 2017 there were 25 sanctioned and proposed mines in Gadchiroli. These would destroy over 6,453 hectares of dense forest. In Kochi, around 12 mining projects are proposed in Jendapa, Agari Maseli, Nandali, Sole and Baritola villages, covering a forest area of over 1,000 hectares. रावपाट गंगाराम घाट येतं आम्ही 150 वर्षापूर्वीपासून आम्ही हे पूजा करत आहोत आणि गेल्या 4-5 वर्षापासून यात्रेची सुरुवात केलेली आहे। ते फरवरी महिन्यामध्ये पौर्णिमेच्या जवळपास ते यात्रा होते आणि तसंच इकडे सोहलेची एरिया आहे त्याच्यामध्ये पण खाणीचा प्रकल्प आहे आणि या बाजूला आमचे पुण्यदेव आहेत। ठीक है, हम एक चले जाएंगे, सरकार डांटेगा कंपनी, हम चले जाएंगे, हमारा देव कहाँ जाएगा यहाँ का। हम तो नागपुर चलेंगे, हमारा जो घर का देव है हमारे साथ आएगा, मगर सभी लोगों का सहमुख देव यहाँ पड़ा हुआ है, वो देव जा ही नहीं सकता। इसलिए इतने गांव का लोगों का 30 और 60-90 गांव का यहाँ विरोध चल रहा है। Although mining will only directly affect a few villages, all Gram Sabhas in Kochi have collectively opposed mining. Women in particular speak of the importance of unity. They say that what affects other villages today will affect us tomorrow. आमचं जीवन चांगलं वाटते, पण जसं हे काय ते कंपन्या वगैरे असं म्हणजे जंगल वगैरे चालू करण्याचं करतात ना, त्याच्या लढ्यासाठी तर सामोरं आहेतच म्हणा, आहोत आम्ही तयारीतच आहोत आणि त्यांना चालू करू देणारही नाही अशी आमची जिद्द आहे। म्हणून आम्हाला आमचं जीवन चांगलं वाटतं। आता सध्या काहीच नाही, आमचं जे प्रदूषण नाही, काही नाही, आम्हाला चांगलंच वाटतं। विकास की परिभाषा ही मेरे को हमें ये समझ भी नहीं आ रहा है। अपन खदान या कुछ माइनिंग्स ये करने से विकास होगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे हमको शाश्वत विकास होना, हमारे यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ये जंगल में रहने वाले, तो जंगल की बचाव होना ज़रूरी है। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हमारे आदिवासी लोगों को जीना ही मुश्किल हो जाएगा। एक जैसे मछली अगर तालाब से
निकाल दिया जाए तो पानी के बाहर आने से मछली आपो आप ख़त्म हो जाती है। वैसे हमारे आदिवासी लोगों की यहाँ की परंपरा है। अभी अगर हमारे देखा जाए लोहा यहाँ का अपन झंडे पार माइनिंग्स के बारे में सोहले है, आगरी है, ये अगर माइनिंग्स हो जाते हैं तो हमारे यहाँ का जो गौन वन उपज है वो तो पूरा नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा जंगल ही नष्ट कर देंगे। तो हमारे आदिवासी लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे आदिवासी लोग या गढ़चिरौली जिला में अगर आप देखा जाए तो विदर्भ में या तो मराठवाड़ा में इतने हमारे काश्तकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इतिहास देखो गढ़चिरौली जिले में अभी तक के कितने भी दुष्काल हो जाए, कितने भी 88 से लेकर 88 में बहुत बड़ा ये हुआ था, लेकिन हमारे गढ़चिरौली जिले के लोगों ने आत्महत्या नहीं करने का वजह है यहाँ का संसाधन हमारा जंगल है और हमको शाश्वत विकास होना है। एक साथ अगर वो माइनिंग हो गया तो उसको ख़त्म कर दो और यहाँ का पूरा वातावरण ख़राब कर दो, ये विकास हमको नहीं होना, ये हमको शाश्वत विकास जरूरी है। The enactment of two radical pieces of legislation, the Forest Rights Act of 2006 or FRA and the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act of 1996 or PESA, has helped spark transformations which could use local conceptions of well-being, lead to political and economic decentralization and new forest management and conservation practices. और इसके विरोध में जब आदिवासियों का जब आजीविका के ऊपर हमले होने लगे, उन्होंने अपनी आवाज़ें उठानी चालू की और इस आवाज़ों का परिणाम हमें दिखता है कि 2006 में आया वाला वनाधिकार कानून। The Act acknowledges the historic injustices borne by forest-dwelling communities. It makes provisions to record Adivasis' rights over their traditional forests. And most importantly, it recognizes the Gram Sabha's right to use, manage, and govern their traditional forests as community forest resources, or CFR. By 2011, 87 Gram Sabhas in Kochi Taluka had filed and received their community forest rights claims under the FRA. कोई भी काम ग्राम सभा के क्षेत्र में करना है या फिर उनकी ज़मीन के हस्तांतरण के हस्तक्षेप के बारे में अगर भी कोई बात करनी है तो उसके लिए ग्राम सभा की सहमति की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी काम उनके ग्राम सभा के सहमति के बिना शासन या कोई भी बाहरी लोग करने की कोशिश करते हैं तो वो कानून खिलाफ में जाता है और यही बात है कि कहीं ना कहीं वनाधिकार कानून ग्राम सभाओं को ज़्यादा शक्ति देने का काम करता है। Implementation of the Forest Rights Act has been painfully slow, but Gadchiroli district of Maharashtra is a leading region. By 2018, the community forest rights of Gram Sabhas in Kochi Taluka had been recognized over nearly 40% of the forest area. माग सामिक पट्टो पुड़तू ते माग पायदा यातू माग गुटे दान तरोम ते माग गारटाल वरहोर माग पिरी मनता माग गुटे तान तरोम माग सामिक दावा पुट्टो आसिते माग कुनु माग खंदो मर्स कांजना होंदुर गारटाल सी मंदुर बोरू बाचेर इनवाल वाचेर नाटे ने मंदुर और होंदुर आयो मानाटा बाई मटा हत्ता। तो हम ये तो 2006 में जो कायदा निकला है उसके पहले भी हम करते थे, लेकिन इतना ऐसे अभी कायदा आ गए तो कितना हो गया, पूरा जो पावर है हमारे हाथ में आ गए हैं। पहले तो था लेकिन हम जंगल जाते थे लेकिन गारट को कोमड़ी देते थे, पैसा देते थे। अभी ये चना है जो जवस है वो निकल रहे हैं तो एक बंडे लकड़ी लाने के लिए वो जो मांगता था वो हमको देना पड़ता था, क्योंकि हम चोरी से लाते थे। हमको नहीं लगता था कि ये जंगल हमारा है। अभी हमको लगा है कि ये जो सामुदायिक पट्टा मिला है तो ये इसका मालिक हम हैं, तो अभी हम जाते हैं लेकिन एकदम बिंदास्त से जाते हैं। मेरे को पान लाना है या फल लाना है या फूल लाना है, वहाँ कंदमूल लाना है या दतून लाना है, तो हमें किसी का डर नहीं रहते हैं वहाँ। तो ये भी एक बदलाव आया है। The Panchayat Act of India was extended to Schedule 5th areas in 1996. The Act empowered the local Gram Sabhas in areas such as Kochi Taluka, which are tribal dominated and have special status under Schedule 5 of the Indian Constitution. तो पेशा कानून उस तरीके से आता है और ग्राम सभाओं के और आदिवासियों के मुख्य रूप से संस्कृति और उनके अधिकारों की बात करता है। Under India's local governance system, the basic unit of decision making is a Gram Panchayat, a body to which 5 to 7 representatives are elected from one or more villages.
Panchayats, however, have been widely perceived to be corrupt and influenced by party politics. Their assemblies are consequently poorly attended and rarely have the voice of women and underprivileged castes and classes. By envisioning the basic unit of governance to be the Gram Sabha of a single village or hamlet instead of the Panchayat, both the FRA and PESA empower each hamlet, settlement or village, giving voice to all their citizens, men and women, young and poor. ग्राम सभाओं का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है तेंदू से। तो 2015 में बातें चली कि किस तरीके से तेंदू कर सकता है, क्योंकि तेंदू का बिजनेस इस तरीके से नहीं है कि कोई अकेला गांव करे, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रक्रिया जुड़ी हुई। लेकिन करने के समय कोरची में इतनी जागरूक जागृति नहीं हुई थी, कोरची में सब कुछ नहीं पता था लोगों को। तो कुछ लोगों का था कि चलो इसको ग्राम पंचायत के तहत करते। तो वो एक साल जो रहा 2016 से 2017 का ग्राम सभा के अधिकारों के ऊपर में बात करना कि ग्राम सभा के वनाधिकार कानून के तहत और पेशा कानून के तहत क्या अधिकार है और वो अधिकारों के ऊपर अमल किस तरीके से हो सकता है। तो ये सारी एक प्रक्रिया चली। उसी दौरान लोगों ने अपना एक इनफॉर्मल फेडरेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया महाग्राम सभा। The Mahagram Sabha, which means a larger Gram Sabha or a federation of Gram Sabhas, represents the interests of 90 out of 133 Gram Sabhas in Kochi Taluka. It can be seen as a natural, organic outcome of increasingly autonomous Gram Sabhas. It includes representatives from all castes and communities and meets once a month, with 2 women and 2 men representing each Gram Sabha. महाग्राम सभेमध्ये त्यांचे नाव देण्यात येईल, म्हणजे महाग्राम सभेची जे ग्रामसभा होते हां तिथले सभासद म्हणून निवड केले ते म्हणजे गावच्या ग्रामसभेमध्ये केले आणि इथल्या ग्रामसभेत जे काही चर्चा होते ते म्हणजे महाग्राम सभेत ते सभासद लोक तिथे नेले पाहिजे यासाठी ते निवड केली आणि महाग्राम सभेत जे चर्चा होते ते गावी येऊन गावच्या ग्रामसभेत ते सांगतात. The emergence of the Gram Sabha as a decision-making body had a galvanizing effect on communities, empowering them locally and taking their power to higher levels of government through the Mahagram Sabha, helping them hold the state accountable for locally relevant decisions. The Mahagram Sabha is now setting the market rates for their tendu leaves, facilitating the auctioning process, placing advertisements in newspapers and liaising with contractors. उनके जंगल का अधिकार मिला है, लेकिन जो गौण वन उपज है वो बिक्री कैसे करने का अभी हमने तेंदू और बाम्बू का शुरुआत किया है। तो पहले जो फॉरेस्ट सरकार के माध्यम से जो लिलाव करते थे उसके 3-4 पट अभी ज़्यादा उनको गांव के लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उनके खाता में ग्राम सभा का खाता में जमा होता है पैसा। शुरू में तो जो फॉरेस्ट वाले जो करते थे सरकार के माध्यम से तो पैसा कहाँ रखते थे और कब लिलाव करते थे ये गांव वालों को मालूम भी नहीं होता था, लेकिन अभी गांव बैठ के ये सब पूरा कर रहा है। तो अभी लोगों को लगता है कि हमारा जंगल का उत्पन्न इतना बढ़ रहा है और यहाँ एक है कि ज़्यादा तो जंगल से ही उत्पन्न ज़्यादा मिलता है। सब हिरडा बेहड़ा मोहा सब लकड़ी वगैरह लाते हैं, उनका अगर से रेट निकाल जाए तो खेती से 4-5 पट ज़्यादा उत्पन्न इनको मिलता है। तो ये भी बाम्बू और तेंदू इसका सही रेट अभी ग्राम सभा को मिलता है। This has led to being harassed less often by the forest department and a higher income from non-timber forest produce for people. Gram Sabhas are financially empowered for the first time and are undertaking a number of activities for the collective well-being of their members. शिक्षा के ऊपर जाए तो ये जो रॉयल्टी का जो पैसा मिलता है ग्राम सभाओं को, उस रॉयल्टी के पैसे की कोई ग्राम सभाओं के हिसाब से कोई 10%, 20% से 30% तक के जो अमाउंट्स है वो ग्राम सभाओं में विकास फंड करके वो निधि रखते हैं। उसमें से शिक्षा के बारे में अगर कोई बच्चा अगर उच्च शिक्षण लेना चाहता है और उनके घर की परिस्थिति एकदम कमज़ोर है तो ग्राम सभा की तरफ से उनको आर्थिक मदद करके उन्हें उच्च शिक्षित करने के लिए उनको सहयोग करना। तो पैसा अगर से ग्राम सभा में आता है तो गांव का विकास
कुछ और प्लांटेशन लगाना है, गांव में किसी को अगर से शादी ब्याह में पैसे देना है तो एक गांव के ग्राम सभा डिसाइड करता है, वो पैसा उनको देते हैं। उसके बाद में महिलाओं को जैसा प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण के बारे में अगर कुछ बाहर स्टडी करने जाना है तो ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको आर्थिक मदद भी इस ग्राम सभाओं के फंड में से करके उनको सब चालू है। The Mahagram Sabha also helps members of one Gram Sabha share their knowledge and experiences with other Gram Sabhas and can be used to address conflicts. A sense of belonging and ownership of the forest is gradually being rekindled. As a consequence of this, Gram Sabha-based systems of management and protection of forests are now emerging. आम्ही जंगल रक्षणासाठी प्रति घर 6 म्हणजे एक दिवस 6 घरची निवड केले आणि प्रत्येक दिवशी आणि एक रजिस्टर तयार केले की आज ह्या तारखेला कोण गेले होते असं, म्हणजे 6 घर असे 9 म्हणजे हे गट तयार केले म्हणजे जंगल रक्षणासाठी। तिथे महिला आणि पुरुष, आता माझ्याकडे जे माझे मिस्टर नाही राहिले तर मी जाऊ शकते आणि ते राहिले तर ते जाऊ शकतात। या पद्धतीने रक्षणासाठी जाते। अभी 4-5 साल हो रहा है, अभी जंगल नहीं जलने से वहाँ का जो जैव विविधता है, अनेक प्रकार का जड़ी बूटियाँ है, जैसे कि अगर से जाड़ का कोई अगर बीज अगर नीचे गिरता है तो वो भी बच जाता है। तो ये जंगल नहीं पेटने से इनका एक फ़ायदा दिखता है। इनको जो पैसा आता है जंगल, जैसे कि हिरडा बेहड़ा मोहा कुछ और भी बाम्बू का तेंदू का, तो कुछ गांव में तो ऐसा है कि उन्होंने जहाँ पे प्लांटेशन लगाया है वहाँ बाम्बू नहीं था तो बाम्बू का प्लांटेशन भी किया है इन्होंने। तो ये सब पूरे महाग्राम सभा के लोगों ने बताया है। Whether in resistance to mining or in creating social, political, economic and ecological transformations, the Women's Collective or Mahila Parisa Sangh has played a crucial role. कि हम शासन के साथ भी हम बोल सकते हैं, अधिकारी के साथ में बोल सकते हैं, हमारे सवाल रख सकते हैं। ये महिलाओं के इसमें बहुत से अच्छा से वो बदलाव जो आया है ये संगठन के माध्यम से। सारी चीज़ भी यहाँ भी आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, संस्कृति भी है, इस सारे चीज़ में बदलाव आना चाहिए कि सही सबको समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे लड़की हो, लड़का हो, महिला हो या पुरुष भी हो, सभी को समान मिलना चाहिए, सभी को समान संधि भी मिलना चाहिए समाज में रहने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए। इस चीज़ को तभी हम इसको विकास बोलेंगे। तो इस तरह से सोच रहे हैं, बार बार रख रहे हैं उस बात को, सिर्फ गांव की नहीं तो अलग अलग, ये जैसे हमारे संस्था है उसी तरह अलग अलग संस्था है, संगठना है, वो लोग अभी हमारे पीछे है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए, उसको मन में रुझाने के लिए पता नहीं और कितने साल लगेंगे, लेकिन लड़ाई तो शुरू है, मांगनी शुरू है, ये चीज़ में बदलाव आना चाहिए करके। कि एक गोंडी में कहावत है कि चांगला काम कियांसाठी सफल और कुनो आप पुन्हा जबाबदारीता जाणीव आता पाहिजे। अच्छा काम करने के लिए अपना अपना जवाबदारी का जानीव होना चाहिए। ये अगर से का गांव में सभी लोगों को मालूम हो तो गांव का विकास गांव के ग्राम सभा और गांव के लोग करेंगे। ये अभी तक के अच्छा रिजल्ट आता है। इसके लिए बाहर के लोग आके कर देंगे ऐसा नहीं, कि अपना गांव का विकास खुद वो लोग अपना विकास करेंगे। ये सब पूरा मुद्दे समझने के बाद ये कर सकते हैं, ऐसा लगता है हमको भी। The Mahagram Sabha and Mahila Parisa Sangh processes are challenging the dominant systems of political governance and economic development by moving towards greater autonomy, direct democracy, gendered governance, and ecological resilience. Communities in Kochi are narrating a different idea of well-being, one rooted in the collective process of everyday living. They are reimagining local governance systems, practicing communal living and learning, and they are continuing their spiritual practices, conserving and managing the forest, farming and resisting mining projects. The use of both forest and agricultural products reflects a profound balance and equilibrium. Agricultural produce as a source of food, cash, and sustains the family. The forest as a source of medicine, culture, and sustains the community, and much more besides. In times of uncertainty,
the reliance on both for all they provide is great. Communities in Kochi are resisting the idea of development that thrives on the exploitation of nature and endless growth.